आई हैव गिवन सम इंटरलिंकेजेस, जैसे गवर्नेंस, गवर्नेंस का टॉपिक यू सी इन GS2 एज वेल एज इन एथिक्स। देन मैंने कुछ अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ, मेल्टिंग पॉट, मार्जिनल मैन, इंडिविजुअलिज्म, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, स्यूडो किंगशिप रिलेशन। तो ये कीवर्ड्स हैं। कास्ट जैसे GS1 में है ना, तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी नोइंग द फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम: हायरार्किकल डिविजन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ, देयर इज हेरिडिटरी, देन ऑक्यूपेशन, देन इंडोगैमी, प्योरिटी इन pollution, sacramental meal. These are keywords which you can use in your pointers. Hello. Next 70 days for UPSC Mains 2026 is the crucial factor for us. This is the most rigorous phase of the entire UPSC cycle. We know that the knowledge as such does not directly relate to the marks we get fetch in the mains. So we need to have a clear-cut strategy and how to manage these weeks so as to maximize our scores in the mains. My name is Sahiba Anjum. I am former scientific officer, Bhabha Atomic Research Center. I have given multiple UPSC CSC mains and also interview appeared. I help aspirants to declutter the noise around the preparation and help them gain clarity and results. So let's start. The reality for the next 70 days, the most decisive phase, as I've already told you, limited and huge syllabus. We need to cover GS1, GS2, GS3, GS4, then essay paper. Then there are 2 optional papers. And again, 2 language papers are also there, not to forget about that. Then in the GS, we know that we have 20 questions to be written in 3 hours. So there are 10 questions for 10 markers, then 10 questions for 15 markers. So around we get, for a 10 marker, we get around 7 minutes, and for a 20 marker, we get around 11 minutes. So we need to have a top-notch quality content, as well as we need to deliver it within the time stamp. So we need to have a time management. If we talk about the study hours, है ना, it is going to be rigorous, no doubt about that. आपको कम से कम minimum I would say 10 to 12 hours daily clock करना पड़ेगा, because सिलेबस इज वास्ट एंड हमको आंसर राइटिंग भी करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप 6 आवर्स फॉर GS निकालेंगे, देन एट द सेम टाइम 6 आवर्स फॉर ऑप्शनल। अगर 12 घंटे का हम लेके चलते हैं तो उसमें आप डिवाइड करो 50-50, तो उसमें 6 घंटे में भी अराउंड आई वुड से इफ 6 आवर्स यू आर टेकिंग for the GS, around 1.5 hours should go into your answer writing for GS questions. And at this similarly for optional also, in totality of 6 hours, अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, maybe 4.5 hours, then the remaining 1.5 hours you should be writing. Writing is very crucial because answer writing is a skill and it takes time to develop that. Some students have that knack inherently, but it need to be refined. But कुछ लोगों के लिए मेहनत ज़्यादा लगती है ना, तो उसमें टाइम लगता है। पहले दिन से बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिखे जाएंगे, बट वी नीड टू राइट एनी हाउ। अगर आपको लग रहा है कि परफेक्ट आंसर ही आप डायरेक्टली लिखोगे, वो कभी भी नहीं होने वाला, एंड वी विल बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग इट, कि हमको बहुत सारा कंटेंट एक्यूमुलेट करेंगे, याद करेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, एंड वी डिले इट फर्दर। लास्ट में जाके आप कुछ क्वेश्चंस लिख पाओगे एंड देन द टाइम कम्स, तो वी आर नॉट एबल टू डिलीवर इवन द टॉप एंड वैल्यू कंटेंट वी हैव लर्नड बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड इट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज से ही स्टार्ट करेंगे, डेली 3 घंटा लिखना है, 1.5 आवर्स GS और 1.5 आवर्स ऑप्शनल के क्वेश्चंस। उसमें आप क्या करोगे, आप डेली PYQs लिखो, है ना, बिकॉज through PYQs you need to you come to know the framing of the questions, the type of questions being asked, क्या directives हैं, demand क्या है question का, what are the dimensions being asked। तो आप उस तरीके से अपने notes भी prepare करोगे, वो help करेगा उसमें। Then see the topper copies देखिए, download करिए, जो questions उन्होंने लिखे हैं similarly वो questions आप लिखो and try to check and देखो कितना gap है। You can even take the value addition from the topper copies as such. आप examples, quotations वहाँ से utilize करो, अपने notes में add कर लो। Then
लेट्स सी कि हमको कैसे प्लान करना है द कमिंग मंथ्स, ठीक है। अगर जून में स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 8th से, ठीक है, वी विल डिवाइड GS 1 2 3 4 अराउंड 12 days फॉर ईच सब्जेक्ट, है ना। तो वी विल कवर अबाउट 14, मे बी इन 45 to 48 days we will able to cover the syllabus. तो if you are starting, let us say GS 4 ethics, है ना, from 8th we can go up to say 20th, आप 20th तक GS 4 दैट इज एथिक्स वो आप कंप्लीट करो। डेली आंसर राइटिंग करनी है थ्रू PYQs, सी टॉपर कॉपीज एंड सेक्शनल्स लगाइए। जब आप पेपर, इसमें 2 सेक्शन होते हैं एथिक्स में, ठीक है, एक थ्योरी बेस्ड होता है और केस स्टडीज होती है। जब आप थ्योरी बेस्ड कंटेंट अपना क्लियर कर लो, है ना, पढ़ के, देन राइट अ सेक्शनल टेस्ट ओवर। सिमिलरली केस स्टडीज भी आप डेली एक केस स्टडी लिखिए, ताकि बिकॉज इट टेक्स टाइम, केस स्टडी इज वेरी लॉन्ग, उसको पढ़ के समझ के कॉम्प्रिहेंड करने में टाइम लगता है एंड इट टेक्स टाइम। सो डेली आप 1-2 केस स्टडी तो लिखिए। Then if we start from 21st we'll take GS3, because GS3 में बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो यूजुअली हम प्रीलिम्स में नहीं पढ़ते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। अगर ये टॉपिक्स को हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो वी विल नॉट बी एबल टू कवर इट, एंड वी आर सीइंग दैट GS3 में स्कोर्स भी ड्रॉप डाउन इसीलिए होते हैं। सो वी नीड टू वर्क अपॉन दिस। अगर हम यहाँ पे एज ले लेंगे देन वी कैन गेट ओवरऑल एज इन द GS पेपर्स। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 21 मे बी, सो आप उसको 30 तक स्ट्रेच करेंगे, देन यू कैन टेक अप टू मे बी अराउंड 4, यहाँ तक आप GS3 कंप्लीट करिए, है ना। फोकस करिए इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट, वो काफ़ी फेच करता है मार्क्स। देन फोकस करिए एग्रीकल्चर, उसमें टेम्पलेट होता है एग्रीकल्चर का, है ना। तो टेम्पलेट बेस्ड करेंगे एग्रीकल्चर में तो वो काफ़ी मार्क्स फेच कर सकता है। आप जैसे कि प्री प्रोडक्शन, देन फार्मिंग, देन पोस्ट फार्मिंग, है ना, ऐसे करके आप थोड़ा फेजेस में डिवाइड करेंगे टेम्पलेट बना के। देन आफ्टर GS3 you can take up GS1 from 5th। if you take GS1, इसमें हम फोकस करेंगे सोसाइटी पार्ट, बिकॉज दिस वी डू नॉट कवर यूजुअली इन द प्रीलिम्स, है ना। आपको हिस्ट्री तो आएगा, देन यू नो द ज्योग्राफी पार्ट, तो एज सच आपको वही कंटेंट रिवाइज करना है एंड राइट द आंसर्स। बट फॉर सोसाइटी इट इज गेटिंग ट्रिकियर डे बाय डे। क्वेश्चंस आप देखोगे काफ़ी एनालिटिकल आते हैं एंड वी नीड टू हैव अ हैवी कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स फॉर दिस। तो आप सोसाइटी पार्ट में थोड़ा सा फोकस करेंगे, देन ट्राई टू एंड इट बाय 18, है ना। तो दिस वीक from 5th to 11 and from 12 to 18 we'll do GS1, then the last comes your GS2 जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस वाला पार्ट आता है, इसको हम कंप्लीट करेंगे बाय 31st। सो आवर टारगेट शुड बी कि हम जून और जुलाई मंथ में अपने चारों GS पेपर्स कंप्लीट कर लें, सो दैट इन अगस्त मंथ वी जस्ट नीड टू रिवाइज अवर कंटेंट एंड राइट आंसर्स एज मच एज पॉसिबल एंड सम गिव सम सिमुलेटर्स एज वेल। तो आप क्या क्या करोगे, डेली आपको PYQs वगैरह लिखने हैं, टॉपर कॉपीज आंसर लिखने, और न्यू क्वेश्चंस के लिए जॉइन सम टेस्ट सीरीज, उसमें आप सेक्शनल टेस्ट लिखो, है ना। जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, फॉर एग्जांपल यू आर कवरिंग पॉलिटी पार्ट, है ना, यू आर कवरिंग द गवर्नेंस पार्ट, तो उसके सेक्शनल टेस्ट होते हैं, तो वो साथ साथ में आप सेक्शनल टेस्ट देते जाइए, ठीक है। एंड देन इन द एटलीस्ट इन अगस्त मंथ वी नीड टू राइट 2 FLTs पर GS सब्जेक्ट। तो मेक श्योर दैट आप कम से कम 2 FLT पर GS सब्जेक्ट लिख के जाओ, दैट यू कैन डू इन अगस्त मंथ ऑल्सो, ठीक है। एंड ऐसे कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, यू कैन यूटिलाइज योर सैटरडेज एंड संडेज। आप सैटरडे या संडे एक भी दिन ऐसे आप डिफाइन कर लीजिए व्हेन यू विल बी राइटिंग एसेज, एंड आई एडवाइज यूजुअली टू राइट 2 essays in one go, because this is how we have to do in the exam as well, ठीक है। तो आप वीक में एक दिन ऐसे लिखिए, बट आप 2 ऐसे साथ में लिखिए, तो उससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू मैनेज द 2 essays in 3 hours, ठीक है। द essay is sorted। देन ऑप्शनल के लिए आपका सेम अप्रोच रहना चाहिए कि आप 2 पेपर हैं ऑप्शनल, पेपर 1 and 2 पे, उसमें भी सेक्शन A सेक्शन B, देन अगेन इन पेपर 2 देयर इज सेक्शन A एंड सेक्शन B। ट्राई टू कंप्लीट देम इन जून जुलाई मंथ, ठीक है। और जुलाई अगस्त में भी
ऑप्शनल को आई वुड से कि 5 तारीख के बाद आप लोग मत लीजिए. लास्ट 2 वीक्स आई वुड से टू प्रिपेयर फॉर द जीएस. अब आप लोग मे बी अप टू 5th और 7th ऑफ अगस्त यू कैन टेक, बट डू नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड दिस बिकॉज वी गेट अ वीक. आप जीएस पेपर जब आप देंगे उसके बाद मंडे टू फ्राइडे यू गेट अ स्लॉट टू रिवाइज योर ऑप्शनल, दैट यू कैन डू दैट टाइम. अगस्त मंथ एज आई सेड वी नीड टू कीप इट फॉर द रिविजन पार्ट. ठीक है, तो इसमें आप जैसे ये फ्राइडे सैटरडे संडे है और एक और नेक्स्ट आपका है 8th and 9th. तो 8th and 9th यू ट्राई टू गिव अ सिमुलेटर. 7th को जैसे आपने ऐसे लिखा, 8th को आपने GS1 लिखा, फिर 8th को GS2 लिखेंगे. देन अगेन इन 9th ट्राई टू राइट GS3 एंड GS4. सिमिलरली अगर आप 2 सिमुलेटर कर सकते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ना. एक 7, 8, 9 कर सकते हैं एंड देन अगेन इन 14, 15 एंड 16. देन फ्रॉम 21st तो आपका मेंस एग्जाम ही है, तो एटलीस्ट 2 FLTs ट्राई टू राइट इन अ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट सो दैट यू विल बी एबल टू नो हाउ यू विल बी गोइंग टू मैनेज दिस. क्योंकि एक पेपर तो वी कैन राइट एंड मैनेज वेरी इजीली, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन वी हैव टू राइट द 2 पेपर्स बैक टू बैक, है ना. इट गेट्स वेरी एग्जॉस्टिंग both for mind and body. So वो एक बार सिमुलेटर देंगे तो you will be ready to tackle this in the exam as well. देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आपका मेंस का सिलेबस. मेंस का सिलेबस यू शुड बी लर्न बाय हार्ट. बिल्कुल एकदम रटा हुआ होना चाहिए माइंड में. एक एक टॉपिक, सब टॉपिक, हर एक जीएस का हर एक पॉइंटर आपको बिल्कुल माइंड में याद होना चाहिए और उसका इंटरलिंकेज भी यू शुड बी नोइंग. देयर आर मेनी टॉपिक्स which can be used, whose content can be used across the papers, है ना. use content across the papers. आप एक ही कंटेंट GS1 में भी यूज कर सकते हो, GS3 में भी यूज कर सकते हो, एथिक्स में भी यूज कर सकते हो, एसेज में भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो वो इंटरलिंकेजेस आपको बना के रखनी है. तो आप सिलेबस आपके टेबल पे होना चाहिए एंड यू शुड बी लर्न बाय हार्ट. ट्राई टू सी एज मेनी लिंकेजेस एज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन सम इंटरलिंकेजेस जैसे गवर्नेंस. गवर्नेंस का टॉपिक यू सी इन GS2 एज वेल एज इन एथिक्स. ठीक है, तो आपको कंटेंट एक बार प्रिपेयर करना है बट यू कैन यूटिलाइज इन बोथ पेपर्स. सिमिलरली जैसे कि GS1 में सुनामी, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, दीज फिनोमेनाज आर कमिंग. ठीक है, यू राइट इन GS1 एज वेल एज इन GS3. डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आता है इन GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट. सिमिलरली क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन आप देखोगे GS1 में भी आएगा. ठीक है, changes in the geographical features, ice caps वाला जो टॉपिक है, and at the same time it comes in the environment part, environment degradation, वहाँ environment conservation, उसमें GS3 में भी आता है. तो आप जब भी रिवाइज करेंगे, है ना, तो रिवाइज जब भी आप करो, जैसे आप GS3 पढ़ रहे हो योर डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट, तो वहाँ पे आप NDMA गाइडलाइंस पढ़ोगे फॉर एवरी डिजास्टर, बट ट्राई टू सी द फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट फ्रॉम द GS1, वो आप साथ में रिवाइज करोगे. सिमिलरली पॉवर्टी यू सी, उसमें GS1 में भी पॉवर्टी मैंशनड है. ठीक है, पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज है. देन GS2 में भी हंगर, पॉवर्टी इज मैंशनड. अगेन इन GS3 में डायरेक्टली मैंशन नहीं है बट यूजुअली वी रीड इन द इंक्लूसिव ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ के जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पॉवर्टी भी पढ़ते हैं. इसी तरीके से सोशल एम्पावरमेंट आप देखोगे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. वुमेन हो गया, SC ST, देन चिल्ड्रन, देन ट्राइब्स, है ना. इस तरीके से आप देखोगे GS1 में भी क्वेश्चन आता है एंड वी हैव वल्नरेबल सेक्शंस एंड देयर एम्पावरमेंट इन GS2. सो सेम कंटेंट यू कैन यूटिलाइज अक्रॉस पेपर. इसी तरीके से अगर आप देखेंगे IR का कंटेंट है ना, बहुत डायनेमिक होता है. जैसे भी वो GS2 में भी आएगा और एट द सेम टाइम जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो देयर इज अ इंटरनल सिक्योरिटी एंगल, बॉर्डर इश्यूज वगैरह, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सब आप GS2 में भी लिख सकते हैं, GS3 में भी है. Then industries वाला, industries, location of industries are being asked in GS1, and at the same time there are industries in under economy section in GS3, food processing industries, then various infrastructure, वो
अलाइंड हो जाता है, लिंक्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ये बहुत सिलेबस वास्ट नहीं लगेगा। देयर इज सो मेनी रिपीटेशंस, आप अक्रॉस द पेपर्स यू कैन यूटिलाइज योर कंटेंट। Now PYQ from the starting itself I have told you this is the real syllabus। real syllabus क्यों बोल रही हूँ मैं? because syllabus में तो टॉपिक सब टॉपिक्स लिखे, बट कितना डेप्थ में हमको पॉइंटर्स जनरेट करने हैं या किस किस डायमेंशंस में पॉइंटर जनरेट कर रहे हैं, है ना। वी नीड टू नो थ्रू द PYQ। उसमें जो भी थीम्स हैं, थीम्स रिपीट हो रही हैं, टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चंस एज सच भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा करंट अफेयर कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है, बट ओवरऑल कंटेंट इज सेम। व्हाट इज द डेप्थ, कितने डेप्थ तक पढ़ना है, एंड व्हाट आर द डायमेंशंस। फॉर एग्जाम्पल आप अर्बनाइजेशन पढ़ते हैं जब, है ना, अर्बनाइजेशन एज सच इज आस्क्ड रिपीटेडली इन डिफरेंट डिफरेंट वेज। डायमेंशंस कैसे आता है? इफ इम्पैक्ट ऑफ वुमेन इज आस्क्ड, इम्पैक्ट ऑन माइग्रेंट्स, है ना, इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, what are the issues, ऐसे ऐसे अलग अलग डायमेंशंस है। आई विल शो यू द नोट्स एज वेल इन फर्दर स्लाइड्स। इसी तरीके से ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इज अ थीम। There are various dimensions. Impact is being asked on different dimensions in the economy, in the women, on youth, on different angles are asked. तो जो आपको dimensions कहाँ से मिलेंगे? PYQ से। So वो आपको notes prepare करने में भी मदद करेंगे। सो डेप्थ के लिए आपको कुछ पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रेडी करने हैं जो आप 10 मार्कर या 15 मार्कर में लिखना है। पूरे बहुत बल्की नोट्स नहीं बनाने, आपको डेप्थ में सिर्फ मे बी 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यू हैव टू एक्सट्रैक्ट, है ना, उतनी डेप्थ में। बाकी यू कैन मैनेज फ्रेमिंग द सेंटेंसेस। डायमेंशंस याद करिए, देखेंगे थ्रू PYQs, दिस यू कैन इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स टू जनरेट मोर एंड मोर पॉइंट्स। नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी, सबसे ज्यादा इशू जो बच्चों को होता है इन द नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी ओनली, बिकॉज वी नो द कंटेंट वी यूजुअली गेट इन द मार्केट ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ा बल्कि होता है, एंड वी आर नॉट एबल टू रिवाइज दैट इन मे बी फ्यू आवर्स जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, तो वो कंसोलिडेट नहीं होता है। तो इवन फॉर द 2026 अपियरिंग कैंडिडेट्स, ऑल्सो फॉर 2027 जो अभी नोट मेकिंग करेंगे फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, उनके लिए भी ये है कि आपको नोट कैसे बनाना है। फर्स्ट गो थ्रू द कंटेंट विच यू हैव, ठीक है, उसको आप रीड करिए, हाईलाइट करिए, उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एक्सट्रैक्ट करिए। extract only the important pointers from your main content. This should be maybe 5 to 6 pointers for every topic. आप मेजर पॉइंटर्स जिसमें हैवी कीवर्ड्स हों वो एक्सट्रैक्ट करिए फ्रॉम योर मेन कंटेंट एंड राइट इट इन योर नोट्स। नोट्स कैसे बनाएंगे? हर एक सब टॉपिक का आपका एक 1 पेजर और 2 पेजर, नॉट मोर देन दिस। अगर आपने अर्बनाइजेशन बनाया है, मे बी इन 3-4 पेजेस अलग अलग डायमेंशंस कवर किया होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप वुमेन का है तो वुमेन में आप लाइफ साइकिल अप्रोच में बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत कॉन्साइज एंड इट शुड बी रिविजन फ्रेंडली सो दैट यू कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स इन अगस्त मंथ एंड ऑल्सो जस्ट बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल, तब भी आप रिवाइज कर सको। सिर्फ उसमें क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम योर मेन्स कॉन्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वुमेन रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहा है और इश्यूज आ रहे हैं, तो आपको कैसे कीवर्ड्स यूज करने हैं? स्टिकी फ्लोर, then glass ceiling effect is there, then sun meta preference is there. These kind of keywords आपके आंसर्स में आने चाहिए, ठीक है। मोल्ड इन अ मैनर क्या वो कीवर्ड्स एंटर कर सको अपने आंसर्स में। फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स, जितने एग्जाम्पल्स आपको मिल रहे हैं वो आप लिख लेंगे। रिपोर्ट्स एंड डेटा एंड रिपोर्ट्स, जैसे कि नीति आयोग की रिपोर्ट है, सेकंड ARC का रिपोर्ट है, NFHS का डेटा है, PLFS का डेटा है ना। NF में लिख देती हूँ, NFHS, PLFS, नीति आयोग, सेकंड ARC एंड वेरियस कमिटीज। बहुत सारी कमिटीज भी होती है। इफ यू आर राइटिंग अ क्वेश्चन ऑन वाटर, देन मिहिर शाह कमिटी should come into your mind. Then if you are writing a question on food security, then you should write Shanta Kumar committee.
चाहे वो पूछा हो नहीं पूछा हो, यू हैव टू राइट इट इन मे बी इन द वे फॉरवर्ड और एनीवेयर, चाहे आप इंट्रो में लिखो, कंक्लूजन में लिखो, वे फॉरवर्ड में लिखो, हाईलाइट इट। अगर जैसे फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन लिखना ही है, नो डाउट अबाउट दैट। अगर पीआरआईज पे क्वेश्चन आ रहा है, मनी शंकर अय्यर कमिटी रिपोर्ट, यू कैन राइट इन योर क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। दीज आर वैल्यू एडिशन पॉइंट्स विच फेच यू मार्क्स। फिर उसके बाद आपको जेनरिक पॉइंट पे लिखना है ना, यू कैन राइट योर जेनरिक पॉइंट, जस्ट ब्रैकेट में आप ये कमिटी और रिपोर्ट का नाम मेंशन करते हो। इट इज नॉट वेरी नेसेसरी कि डायरेक्टली आप वहीं से कोट करो, बिकॉज दीज कमिटीज, दीज रिपोर्ट्स आर वेरी बल्कि, उसमें बहुत से पॉइंट्स होते हैं। इवन द पॉइंट्स विच आर कमिंग इन योर माइंड वो वहां पे होगा ही होगा, है ना। तो राइट योर पॉइंट एंड द सब्सटैंशिएट विथ द रिपोर्ट और द कमिटी। सिमिलरली कुछ केस स्टडीज आप ऐड करेंगे अपने। केस स्टडीज जो यूजुअली हम एक अलग से छोटा सा एक कॉलम बना देते हैं बॉक्स के अंदर, वहाँ पे आप केस स्टडी लिखते हो, वो एक वैल्यू एडिशन का काम करता है। जैसे कि अगर आप पीआरआईज पे अब एक क्वेश्चन लिख रहे हैं पंचायती राज में, तो पल्ली पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो नेट ज़ीरो के लिए द फर्स्ट विलेज फॉर द नेट ज़ीरो के लिए रिकॉग्नाइज किया गया, तो आप वो छोटा सा मेंशन कर सकते हो, है ना। तो दीज आर जस्ट वैल्यू एडिशन जो आपको आधा आधा एक एक मार्क्स हर एक क्वेश्चन में फेच कर सकता है। सिमिलरली डायग्राम्स, इवन इफ योर डायग्राम वहाँ बैठ भी नहीं रहा है, स्टिल यू कैन मेड सम, जैसे कि आप ऐसा हब एंड स्पोक बना दो, कोई पॉइंटर्स आप उसको जस्ट पॉइंटर 1 2 3 4 ना लिख के मे बी यू कैन मेक इट इन अ हब एंड स्पोक मॉडल, कुछ फ्लो चार्ट्स बना दिया। तो इससे दो फायदे हैं, एक तो आपका आंसर एकदम, आपकी कॉपी बिल्कुल सिमिलर नहीं लगेगी दूसरों से, ठीक है, क्योंकि अगेन द एग्जामिनर का जो साइकी होता है, ही और शी हैज टू चेक सो मेनी कॉपीज इन अ डे, तो सेम कंटेंट ही है, बट इफ द प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, है ना, इट हैज योर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। अगर प्रेजेंट वही पॉइंटर्स आप थोड़ा सा फ्लो चार्ट में या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में लिखा है, तो वो उससे थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत टाइम जब आपको कंटेंट नहीं आ रहा है, बहुत सारे पॉइंटर्स नहीं आ रहे हैं, देन ऑल्सो एट दैट टाइम यू कैन यूटिलाइज डायग्राम टू फिल योर स्पेस इन द आंसर। आप यूजुअली पूरे हाफ पेज में एक बड़ा सा डायग्राम बना दो अगर आपको पॉइंटर्स बहुत याद नहीं आ रहे हैं, तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। तो डायग्राम्स, कोड्स का आप कुछ छोटी सी रिपोजिटरी मीन्स बना के रखिए, कुछ कोड्स में भी 10-12 कोड्स जो आप अक्रॉस पेपर्स यूज कर सकते हो। आप ऐसे में भी यूज करोगे, देन योर GS 1 2 3 4 जहाँ वुमेन पे आया क्वेश्चन, तो यू कैन राइट अ कोड, ठीक है। इसी तरीके से ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे आया है, तो यू कैन राइट अ कोड। तो प्रिपेयर सम इम्पॉर्टेंट कोड्स, देन इंट्रो थीम्स और कंक्लूजन थीम्स आप रेडी करके रखो। बॉडी के लिए मैंने बता दिया, द वैल्यू एडिशन पार्ट यू हैव टू डू, ठीक है। देन इंट्रो के लिए कुछ थीम्स बना के रखेंगे, जैसे कि हर एक टॉपिक सब टॉपिक में आप ये देखिए कि हम हाउ आई कैन इंट्रोड्यूस इट। अगर कुछ न्यूज़ में है, रीसेंट कॉन्टेक्स्ट इज देयर, यू कैन इंट्रोड्यूस विथ द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर हरप्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया, बिकॉज इट वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ 100 years ऑफ डिस्कवरी ऑफ द IVC, ठीक है। सो दिस यू कैन राइट इन द इंट्रोडक्शन। यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो ये एक एग्जामिनर को भी एक इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि हाँ इसको पता है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है ना। तो ये दिस इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। देन यू कैन यूज अ कोटेशन, यू कैन राइट सम कीवर्ड एंड डेफिनेशन बेस्ड ऑल्सो यू कैन डू। देन फॉर कंक्लूजन थीम्स, प्रिपेयर सम कंक्लूजन थीम्स, जैसे कि इकोनॉमी में क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन राइट विकसित भारत, जहाँ जहाँ पे आप दिखा सकते हो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकसित भारत बाय 2047, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू यूज इन योर कंक्लूजन, हैवी कीवर्ड्स आई वुड से। जैसे SDG अप्रोच भी यूज करते हैं, जैसे आप अर्बनाइजेशन में सस्टेनेबल सिटीज SDG 11 यूज कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आप पंच प्राण यूज कर सकते हो, जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह आप शो कर रहे हो, वहाँ पे पंच प्राण एज सेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो आप कर सकते हैं, ठीक है।
दिस इज़ माई नोट्स जस्ट टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। बहुत क्लियरली आपको नहीं समझ में आएगा, बस दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू मेक। बहुत छोटा लिखा है, जैसे अर्बनाइजेशन है तो मैंने यहाँ पे जो रेड से लिखा है वो मैंने रीसेंट कॉन्टेक्स्ट लिखा है। रिसेंटली cities coalition for circularity C3 was introduced for, तो वो recent context जैसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैंने कुछ डेटा लिखा बाय 2050 UNFPA रिपोर्ट आप कोट कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट गैप बाय वर्ल्ड बैंक, ये मैंने कुछ डेटा कोटेशन यूज़ किया हुआ है। देन मैंने कुछ अर्बनाइजेशन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ, मेल्टिंग पॉट, मार्जिनल मैन, इंडिविजुअलिज्म, अचीवमेंट ओरिएंटेशन, स्यूडो किंगशिप रिलेशन। तो ये कीवर्ड्स हैं विच आई विल बी इनकॉर्पोरेटिंग इफ अ क्वेश्चन कम्स इन अर्बनाइजेशन, और जहाँ पे भी ये फिट बैठता है आई विल यूज इट। इस तरीके से कॉन्क्लूजन मैंने लिखा है ना, एसडीजी 11.123 जैसे क्या है उसमें भी फर्दर है। अगर आप हाउसिंग पे क्वेश्चन आ रहा है तो एसडीजी 11.1, ट्रांसपोर्ट पे आया है तो एसडीजी 11.2, ऐसा कर सकते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो इट्स ओके, एसडीजी 11 लिख सकते हैं। राइट टू सिटी भी आप लिख सकते हैं, एक बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था यू राइट टू सिटी करके, यूएन हैबिटेट बाई, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। इसी तरह जैसे कि ट्रांसपोर्ट में मैंने लिखा हुआ है, ये जो ब्लू में लिखा है, इट इज द इश्यूज, द ट्रैफिक कंजेशन, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, पॉल्यूशन। एंड द रेड में जो मैंने लिखा है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स विच हैव बीन टेकन। तो आप लिख सकते हो मेट्रो रेल पॉलिसी, कैब शेयरिंग, ट्रांजिट ओरिएंटेशन, पीएम ई बस सेवा, ठीक है। देन फेम, BS6 नॉर्म्स, पीएम ई ड्राइव। इस तरीके से डायग्राम यूज कर सकते हैं। जैसे नॉन ट्रांजिट ओरिएंटेशन डेवलपमेंट है, अभी कैसा है, ऐसा हैफेजार्डली बहुत प्लान्ड है सिटी। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, घर बना दे रहे हैं, फिर हम रोड्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से पहले ट्रांजिट, और वी कैन मूव टुवर्ड्स ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहाँ पे आप देखो पहले रोड्स ऐसे प्रॉपरली बनी है, फिर उसके बाद पूरी कैस्केडिंग प्लानिंग के साथ टाउनशिप बिल्ड हुई है। सिमिलरली आई हैव रिटन फॉर कास्ट के लिए अगर कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे कास्ट टू क्लास मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एस्क्राइब्ड ओरिएंटेशन टू अचीवमेंट ओरिएंटेशन, क्लास सॉलिडारिटी, क्लास गेटोवाइजेशन। आप इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम बना दिया। देन इन फैमिली में हाउ चेंजेस आर बीइंग देयर ड्यू टू अर्बनाइजेशन, स्ट्रक्चर में क्या चेंज आ रहा है, स्ट्रक्चरली we are nuclear, functionally we are joint, then neo locality, then function में क्या changes आ रहा है, socialization, how socialization is changing, interpersonal relations कैसे change हो रहे हैं। तो ये मैंने important keywords and data लिखा हुआ है। हेल्थ एंड सैनिटेशन का अगर आ रहा है तो इसमें क्या इश्यूज होते हैं यूजुअली, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, ठीक है। एंड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स, आयुष्मान भारत, वेलनेस सेंटर्स, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, जन औषधि केंद्र। तो दीज कीवर्ड्स, दीज इनिशिएटिव्स यू नीड टू नो सो दैट यू कैन राइट इट इन योर आंसर्स, एंड दीज आर द पॉइंटर्स। अदरवाइज आपका आंसर बहुत जेनरिक लगेगा। आप पॉइंटर, एक जनरल पॉइंट लिखने के बाद प्लीज सब्सटैंशिएट विद दीज एग्जाम्पल्स। ओके, गवर्नेंस में ये मैंने दिखाया कि अर्बनाइजेशन को मैंने अलग अलग डायमेंशंस में कैसे अप किया है। दिस इज बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द PYQs, क्या क्या डायमेंशंस पूछ सकता है। इन अर्बनाइजेशन देयर इज एन इशू इन गवर्नेंस, यू नो द म्यूनिसिपैलिटीज, देर इज लैक ऑफ फंड्स, फंक्शंस, फंक्शनरीज, है ना, डेटा गवर्नेंस, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो इन आई हैव मेंशन्ड व्हाट आर द इनिशिएटिव्स विच आर बीइंग टेकन। तो आप डिजिटल इंडिया, then urban flood fund challenge, स्वच्छता ऐप, उमंग ऐप, all are these initiatives. then कुछ आप रिपोर्ट भी डाल सकते हैं, जैसे डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, कैग ऑडिट रिपोर्ट आया था दैट ओनली 4 out of 18 फंक्शंस आर बीइंग डिवॉल्व्ड, तो वो आप लिख सकते हैं। देन नोट मेकिंग वी हैव डिस्कस्ड, इस तरीके से नोट्स आप बना लो। और छोटा हो सकता है, आप छोटा कर सकते हो। आई हैव रिटन मेनी पॉइंटर्स इन हियर। आंसर राइटिंग टेम्पलेट, अब आप जब आंसर लिखोगे तब आपके माइंड में कुछ कुछ टेम्पलेट्स अगर पहले से बने होंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल कास्ट जैसे GS1 में है,
है ना। तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है तो यू शुड बी नोइंग द फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम। फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम: हायरार्किकल डिविजन ऑफ सोसाइटी based on birth, there is hereditary, then occupation, then endogamy, purity and pollution, sacramental meal. These are keywords which you can use in your pointers. आप चाहो तो इसको आप इसी फॉर्म में हब एंड स्पोक में दिखा सकते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, देन राइट योर पॉइंटर्स। और अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज दीज कीवर्ड्स एज योर पॉइंटर हेड, है ना। पॉइंटर हेड लिखेंगे, देन राइट योर पॉइंट। और जैसे कि आप इंट्रोड्यूस मतलब आप डिफाइन डेफिनेशन बेस्ड अगर इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं तो यू कैन कोट द नेम ऑफ द ऑथर, देन राइट योर डेफिनेशन। इस तरीके से बॉडी में जैसे कि स्टेक होल्डर अप्रोच एक अच्छा है, जैसे कि कुछ भी गवर्न पॉलिसीज, कुछ भी सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आया है तो स्टेक होल्डर्स, ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड। फिर वो स्टेक होल्डर को दिमाग में रखते हुए आप सॉल्यूशन या वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी, एनजीओ, गवर्नमेंट, लीगल, जुडिशियरी, वर्क प्लेस, तो यू विल जनरेट सो मेनी पॉइंट्स। सिमिलरली सोसाइटी, अगर सोसाइटी कीवर्ड है इन योर क्वेश्चन तो उस सोसाइटी वर्ड दिमाग में आते ही यू शुड बी क्लियर इनफ। तो आपको क्या क्या पॉइंटर लिखना: फैमिली, कास्ट, मैरिज, क्लैन, वुमेन, ट्राइब्स, पैट्रियार्की, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब आप पॉइंटर हेड्स यूज कर सकते हैं। देन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एज पर यूएन। वो आप देखना, जैसे उसमें सेल्फ वर्थ है, कंट्रोल ओवर योर चॉइसेस, टू मेक सम सोशल इम्पैक्ट, तो वो ऐसे करके 5 पॉइंटर्स है। तो वो आप या तो डायग्रामेटिक फॉर्म में भी दिखा सकते हैं इफ अ क्वेश्चन कम्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, और यू कैन यूज इट इन योर जनरेटिंग योर पॉइंट्स। देन इम्पैक्ट और रीजन इज बीइंग आस्क्ड, तो अलग अलग रीजन के जो फैक्टर्स हैं या फिर इम्पैक्ट कौन कौन सी डायमेंशंस में है, तो आपको पेस्टल अप्रोच पता होगा: इकोनॉमी, पॉलिटिकल, एजुकेशन, सोशल, लीगल, हेल्थ, साइकोलॉजिकल, डिजिटल। ट्राई टू इंक्लूड डिजिटल, आपके हर एक आंसर में अभी डिजिटल वाला पॉइंट जरूर ऐड करना है, ठीक है, बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटल एरा। इफ डाइवर्सिटी, सोसाइटी के क्वेश्चन में यूजुअली डाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो डाइवर्सिटी शुड नॉट बी जस्ट कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, आपको उसमें इनकॉर्पोरेट करना है लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रीजनल, ट्राइबल, हिस्टोरिक, है ना, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। देन जोग्राफिकल, सी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स एंड द डाइवर्सिटी ड्यू टू दस डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। डेमोग्राफिक, रीजनल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जेंडर। तो डाइवर्सिटी को इस पॉइंट्स में आप बाइफरकेट करो, बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली यही कल्चरल डाइवर्सिटी में कल्चर आता है, नाम कल्चर आते ही आपके माइंड में एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट, फैमिली, किनशिप, आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, ये सब आना चाहिए। तो टू ट्राई टू राइट आंसर्स इन अ टेम्पलेट फॉर्म, बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन आता है, कुछ फैक्टर्स पूछता है, देन ट्राई टू थिंक इन द फॉर्म ऑफ पहले रॉ मटेरियल्स से रिलेटेड क्या क्या पॉइंटर्स हैं, देन प्रोसेसिंग में लेबर कॉस्ट, देन पावर, देन वाटर, देन ज्योग्राफी, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट वन इट इज प्रोसेस्ड और प्रोड्यूस्ड, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड इशू, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, देन इट गोज टू द मार्केट। मार्केट में भी आपका डोमेस्टिक मार्केट हो सकता है या फिर फॉरेन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से आप बहुत सारे पॉइंटर्स जनरेट कर पाओगे। फिर देयर आर नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे कैपिटल अवेलेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एग्लोमरेशन, टेक्नोलॉजी, हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो दीज विल हेल्प यू टू जनरेट मोर पॉइंटर्स। कुछ डायग्राम्स मैंने बनाए हैं फॉर लोकेशनल ट्रायंगल्स बोलते हैं, जब आपको बताना है कैसे लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग। पहले रॉ मटेरियल साइट्स के पास में इंडस्ट्रीज होती, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स मार्केट, तो यू कैन यूटिलाइज दीज डायग्राम्स ऑफ द लोकेशनल ट्रायंगल्स एंड आइसोडा पिन्स। Other examples of the template, जैसे good governance question comes, then you can utilize the pointers. How you will utilize the 8 pillars of
गुड गवर्नेंस एज गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। उसमें आपका कंसेंसस ओरिएंटेशन, देन देर इज रिस्पॉन्सिवनेस, देन देर इज पार्टिसिपेशन, देन देर इज इक्विटी, देन देर इज इंक्लूसिवनेस, ऐसे करके 8 पॉइंटर्स हैं, ठीक है। यू कैन यूटिलाइज ऑल दीज टू जनरेट मोर एंड मोर नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड सब्सटैंशिएट दैट विद द एग्जाम्पल्स। देन क्लाइमेट रिलेटेड, अगर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एनीथिंग इज रिलेटेड टू द वेदर or climate of a region is being asked, then utilize whole points. There's, for example, for temperature, what is the temperature there, precipitation conditions, winds, jet streams वगैरह आप utilize कर सकते हो। then solar radiation, then air pressure, है ना, आप masses, air masses use करो, jet streams, clouds, then stratospheric clouds, then ocean में ocean currents, how warm currents and cold currents are impacting the weather or the climate, then thermohaline circulation, conveyor belt, ये सब आप यूज करो, polar vortex, these kind of words you can use। then utilize the geographical features, various geographical features जैसे कि डेगन प्लेट्यू है, हिमालयाज हैं, प्लेन्स हैं, ओशंस हैं, कोस्टल रीजन है, तो वो फीचर्स वाइज आप पॉइंटर्स जनरेट कर सकते हैं। then various phenomena which are occurring, देन ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन, डिस्प्लेसमेंट, वो आप ह्यूमन फैक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं एंड दिस विल बी सफिशिएंट टू जनरेट मे बी 15-20 पॉइंट्स इन योर आंसर। फिर कुछ स्वॉट एनालिसिस यूज कर सकते हैं इन अ क्वेश्चन जहाँ पे इम्पैक्ट यूजुअली पूछता है, और हम इम्पैक्ट को यूजुअली क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में बाइफरकेट करते हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन से वुमेन, ठीक है, तो यूजुअली वी राइट इन अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, बट वो वी कैन गो अ स्टेप फर्दर, वी कैन डू अ स्वॉट एनालिसिस। आप पॉजिटिव की जगह पे क्या लिखोगे, स्ट्रेंथ्स एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड इन नेगेटिव यू कैन राइट द वीकनेसेस एंड द थ्रेट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है, तो इससे आपका आंसर और एनरिच हो जाएगा। देन कम्स योर करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, दे आर मच मोर प्रेडिक्टेबल देन प्रीलिम्स, है ना। वो आपको यूजुअली इश्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो इश्यूज न्यूज में होता है, इट इज मोर लाइकली दैट द क्वेश्चन विल कम ऑन दैट, सो इट इज बेटर इन सच क्वेश्चंस यू कैन यूटिलाइज द रीसेंट कॉन्टेक्स्ट टू इंट्रोड्यूस योर आंसर्स। तो आप अपने न्यूज़ को अपने सिलेबस थीम्स में इंटीग्रेट करिए। देखिए कि ऐसा आपको रैंडमली न्यूज़ नहीं पढ़नी है, सी कि वो आपके सिलेबस थीम से कहाँ से मैच हो रहा है, वहाँ पे आप उसका रीसेंट कॉन्टेक्स्ट लिखो, ठीक है। ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स विच आर इन न्यूज़, सो दैट उसकी आपकी बॉडी, जो आप आंसर की बॉडी होगी, उसमें आपका एनरिचमेंट दिखेगा। प्रेडिक्टेबिलिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि मेंस 2025 पेपर में हरप्पन आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आया था, है ना, एंड इट वाज वेरी मच प्रेडिक्टेबल बिकॉज 100 years of IVC discovery was there. It was in news already and I was knowing this. So I use this only in my answers in 2025. देन IR इज़ वेरी डायनेमिक, है ना, जो भी सबमिट्स हुए हैं, कोई पार्टनरशिप हुआ है, स्प्रेड डील हुई है, इट इज़ मोर लाइकली दैट अ क्वेश्चन में कम ऑन दिस। सो इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप वाज बीइंग आस्क्ड। देन इकोनॉमी, पूरे इकोनॉमिक सर्वे में, बजट में, हर जगह मेंशन था द इम्पैक्ट ड्यू टू दिस राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, देयर इज सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं likely था कि GS3 में पूछा जाएगा and it was asked. Then again terrorism question was very likely and it has come because of the Pahalgam attack and the Operation Sindoor. Then LWE, the left wing extremism, there was a vision था that we have to become Naxal free by March 2026, ठीक है। तो अगर आपको ये पता है तो आप डायरेक्टली इंट्रो में लिखो, है ना। इफ यू राइट दिस लाइन डायरेक्टली इन द इंट्रो, इट गिव्स यू एन एज देन एंड देयर, आपका 1 नंबर का एज तभी मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम जेनरिक इंट्रो। सो दिस यू कैन डू। आंसर राइटिंग फ्लो, है ना, वी हैव डिस्कस्ड द सिलेबस, इंटरलिंकेजेस, हाउ टू मेक नोट्स, देन हाउ टू इंटीग्रेट योर करंट अफेयर्स। नाउ द थिंग कम्स द आंसर राइटिंग पार्ट। आंसर राइटिंग आपको मैंने जैसे बताया एक फ्लो है। सबसे पहले तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए, है ना। फर्स्ट इज योर कंटेंट, यू हैव द कंटेंट ऑलरेडी, और वैसे भी आपको नॉलेज है,
तो आई डोंट थिंक नॉलेज कंटेंट की एज सच बहुत कमी है. व्हाट यू हैव टू डू इज योर वैल्यू एडिशन पॉइंट, है ना. द इम्पॉर्टेंट फैक्ट शीट्स यू कैन मेंटेन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट कि आपको कैसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन ऐड करना, वो आप करोगे. देन द सेकेंड पार्ट डू नॉट कम्स द राइटिंग, है ना. सीधे कंटेंट के बाद राइटिंग नहीं होता है. जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है थिंकिंग. First, you have to think, you have to brainstorm the points in your mind, you have to understand what is the demand of the question being asked, you have to structure mentally कि आपके दोनों जैसे 10 मार्कर है उसमें आपको 2 पेज मिलेंगे इस तरीके से, ठीक है. यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, ठीक है. तो आप उसमें इंट्रो में क्या लिखोगे, 1-2 लाइन, वो आपके माइंड में आना चाहिए. देन बॉडी में कुछ हेडिंग होगी, मे बी हेडिंग 1, वो आपके कुछ पॉइंटर्स लिखेंगे. फिर यहाँ पे हेडिंग 2 होगी, सब पार्ट होगा, तो वहाँ पे कुछ पॉइंटर्स लिखोगे. फिर उसके बाद आप कंक्लूड करोगे, ठीक है. तो ये इस तरीके की पिक्चर माइंड में लिखने से पहले आनी चाहिए. दिस विल टेक अराउंड मे बी, अगर आपको 7 मिनट्स मिल रहा है एंड यू हैव एंड 11 मिनट्स फॉर 15 मार्कर, अभी के लिए यू कैन टेक अराउंड 1 मिनट टू डू दिस एक्टिविटी. टेक 1 मिनट टू रीड, अंडरस्टैंड, make structure in your point and then write in 6 minutes. Similarly for 11 marker, with time this will reduce, with time बहुत कम हो जाएगा, 30 seconds तक भी हो जाएगा. तो this you can do. फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं करना है कि जैसे ही क्वेश्चन देखा है जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट. अगर ऐसा करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ जाता है. आफ्टर मे बी 3-4 पॉइंट्स यू आर नॉट एबल टू ब्रेनस्टॉर्म अनदर पॉइंट्स, और उसका स्ट्रक्चर और जो प्रेजेंटेशन होता है वो पूरा डिसअलाइन हो जाता है, ठीक है. तो जो टॉपिक आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने चाहिए थे, जो मेजर डिमांड थी, वहाँ पे अपने कम पॉइंट्स लिख दिए एंड आपको फिर उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा है, फिर आप अननेसेसरली अदर डायमेंशन पे पॉइंट्स लिख रहे हो जो पूछा भी नहीं है, ठीक है. तो मेक श्योर दैट यू स्ट्रक्चर मेंटली, देन यू राइट. देन कम्स योर आंसर राइटिंग. अगेन, इवन आफ्टर हैविंग अ गुड कंटेंट, इवन इफ यू आर एबल टू थिंक वेरी वेल, इट इज वी आर नॉट श्योर दैट दिस विल डायरेक्टली कम इन योर आंसर, बिकॉज सोचना और लिखना में थोड़ा गैप है. आंसर राइटिंग इज अ स्किल, इट टेक्स टाइम. तो वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू हैव टू राइट डेली डेली डेली, नो मैटर व्हाट द क्वालिटी यू आर गेटिंग राइट नाउ, आप लिखिए. विथ टाइम दिस विल इम्प्रूव. With time we have to do this content and value addition part, we have to do this brainstorming part, we have to do answer writing all in one go. अभी हमारे पास टाइम नहीं है, है ना. for the appearing candidates we don't have much time, तो हमको parallelly ही सब करना पड़ेगा. देन कम्स द टाइम फैक्टर. अभी मे बी इन जून मंथ आप इतना ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है कि टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, बिकॉज इनिशियली वी टेक टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड स्ट्रक्चर द आंसर्स. तो इट्स ओके. फर्स्ट यू आर एबल टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स वेल, गुड टू गो. देन इन जुलाई एंड अगस्त मंथ फिर आप टाइमर लगा के लिखिए, है ना. आप थोड़ा फ्लैश राइटिंग करेंगे. फ्लैश राइटिंग क्या होती है, आप अपना टाइमर साथ में रखेंगे. when you read a question, start the timer, read the question and write it. आप make sure that every 7 minutes you are changing the question, every 7 minutes you are changing another question. इस तरीके से आप 10 मार्कर लिखेंगे और 11 मिनट्स वाला जो टाइमर होगा फॉर 15 मार्कर क्वेश्चन. तो इसमें आपको समझ में आएगा हाउ स्लोली और फास्ट यू आर राइटिंग. अगर स्लो लिख रहे होंगे तो अगेन विथ टाइमर अगेन एंड अगेन इफ यू विल राइट, योर आंसर स्पीड विल इंक्रीज. ओके. देन सम क्वेश्चंस ऑफ लास्ट ईयर, जैसे कि मैंने बोला था कि द क्वेश्चंस आर बिकमिंग एनालिटिकल. वी नीड टू नो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वेल टू राइट एन आंसर. अदरवाइज व्हाट इज हैपनिंग दैट वी आर हैविंग अ वेरी गुड कंटेंट बट वी आर नॉट मीटिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर गेटिंग वेरी लो स्कोर्स. ठीक है. तो जैसे कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स दैन द नॉन स्टेट एक्टर्स. तो अब इसमें पूछा डू यू एग्री, तो इसमें आप बिल्कुल वन साइडेड नहीं लिख सकते हो कि येस और नो, है ना. आपको दोनों डायमेंशंस दिखाना है, देन एक वे फॉरवर्ड, एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दिखाना है. तो डू यू एग्री में पूछा है पहले, तो आप इसमें
फॉर लिखोगे, फिर उसको एंटीथीसिस दोगे, है ना। इसमें एंटी स्टेट एक्टर्स के साथ क्यों परसीव किया जा रहा है ना, है नहीं एंटी स्टेट एक्टर्स बट परसीव क्यों किया जा रहा है उसके कुछ फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। फिर नॉन स्टेट एक्टर्स का एज सच आप लिखोगे, है ना। एंड देन उसके बाद एक वे फॉरवर्ड टाइप, एक पॉजिटिव कंक्लूजन, एक बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड लिखेंगे। इसी तरह का जस्टिफाई दिया है ना, तो आप जो भी पॉइंट्स लिखेंगे यू हैव टू सब्सटैंशिएट विद द एग्जांपल। सिमिलरली does tribal development in India center around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion. इसमें आपको लास्ट में लिखोगे ना तो in my opinion, because it is asked give your opinion. So in your answer at the last आप पॉइंटर्स लिखो, जैसे कि इसमें टू एक्सेस तो आप लिखोगे ही, है ना, विद डिस्प्लेसमेंट वाला एंगल एंड रिहैबिलिटेशन वाला एंगल, बट देयर आर अदर एंगल्स एज वेल इन द ट्राइबल डेवलपमेंट, तो वो भी इंक्लूड करोगे। इन माई ओपिनियन अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर, तो वो आप लिखोगे, ठीक है। तो दिस वे यू नीड टू डीकंस्ट्रक्ट द आंसर स्ट्रक्चर मेंटली, देन राइट। So we have come to the end of our session. Abhi the time is for the execution. I know this is a rigorous phase, most rigorous phase which I feel in the entire UPSC cycle, because यहाँ पे आपको mentally, physically everything मतलब आपकी लिखना है तो obviously you need to be, हमको physically भी थोड़ा सा healthy रहना important है, बहुत rigorous हो जाता है, then it becomes overwhelming and exhaustion भी creep in करती है बार बार, because so much of syllabus and so little time. Again these things are there, but it is there for everyone, don't worry, be consistent. अभी motivation as such बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, but we need to be consistent because only 70 days guys, है ना, सिर्फ 70 days ही है, ये आपका आर या पार लगा देगा। आप यहाँ पे अगर जितना एनरिचमेंट गेन करेंगे, मेंस के स्कोर इम्प्रूव होंगे, क्योंकि इंटरव्यू एज सच बहुत सब्जेक्टिव है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन आवर इंटरव्यू मार्क्स मच, वी कैन गेन एज इन द मेंस, वो करेंगे तो हमारा सीधे रेप्लिकेट हो गए मार्क, अवर रैंक इन द होली PDF। सिमिलरली अगर आपको ओवरवेलमिंग लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक हो रहा है, दीज थिंग्स हैपन, कीप योर एंकर्स रेडी, है ना। अपने एंकर्स होने चाहिए आपकी लाइफ में, मे बी योर सपोर्ट सिस्टम, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर मेंटर्स, योर टीचर्स, एनीवन, जहाँ पे भी आप लो फील कर रहे हैं, दे शुड बी देयर टू पुल यू अप, ठीक है। एंड इन योर रूटीन ऑल्सो मेंटेन अ हेल्दी रूटीन, सस्टेनेबल रूटीन, कीप योरसेल्फ हेल्दी, देन स्टे काम एंड कीप एग्जीक्यूटिंग। बस कामनेस मेंटेन करके एग्जीक्यूट करना है, एक्शन इज द की नाउ, है ना। जितना रुकेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, उतना ही वो बढ़ेगा। टू कम ओवर इट, एक्शन इज द की, हमको एग्जीक्यूट करना है, करते रहना है, लिखना है, रिवाइज करना है, जो भी वैल्यू एडिशंस आप बना रहे हैं कॉपी पे, just do it, keep writing answers no matter what the quality is coming, but keep writing, keep evaluating। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, लिखने के बाद इवेल्युएट करने हैं आंसर्स आपको। जैसे आप टॉपर कॉपीज देख के लिख रहे हो, तो टॉपर कॉपी से आपने लिखा, देन इवेल्युएट कि आपने क्या डिमांड लिखा और टॉपर ने की कॉपी में कौन से डिमांड्स लिखे हैं, आपको क्या मिस हुआ, कौन सा सब टॉपिक या सब डिमांड मिस हुई है। इसी तरीके से आपका अगर पीयर ग्रुप है तो आप अपने आंसर्स इवेल्युएट करवा सकते हो एक दूसरे से, ठीक है। इस तरीके से करना है। देयर आर मेनी लाइव आंसर राइटिंग सेशंस आल्सो, यू कैन ज्वाइन, तो टेक हेल्प, है ना। अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे, टेक हेल्प, देयर इज नो शेम इन नॉट टेकिंग, के खुद से ही करना है, बिकॉज टाइम इज लेस, टाइम लेस है। टेक हेल्प ऑफ द मेंटर्स की हेल्प ले सकते हो, पीयर ग्रुप रख सकते हैं, खुद से करना है खुद से करिए, बट बी कंसिस्टेंट, कीप राइटिंग in any case. So there are three R's which I talk about usually. The right strategy, which I have already talked about. The second R is your right mindset, है ना। You need to have a positive mindset despite the struggles we are facing, because this directly improves your productivity and shows it in your outcome. Then your right action, right execution, तो ये तीनों आर्स याद करेंगे। स्टॉप नॉट, अभी आज से जब से स्टार्ट किया है, प्लीज डू नॉट स्टॉप टिल जब आप ऑप्शनल का पेपर 2 कंप्लीट करके बाहर एग्जाम से ना आओ, तब तक नहीं रुकना है।
Make a sustainable plan, but be consistent in your approach. I hope this session has helped you in the mains answer writing. Do comment in the section below if the session has helped you. Until then, take care. All the best. Thank you.